in my last video I have given you that how to prepare haloalkanes, no? So basically today I am going to start the next preparation, that will be the preparation from hydrocarbons. Okay, the second preparations I'm writing here, so it will be from preparation from hydrocarbons. Okay, so it will be preparation from hydrocarbons. So basically what we have to see that in the last video I have given you that how to prepare haloalkanes from alcohols. So today we are going to prepare one more preparation, that is haloalkanes from hydrocarbons. So generally you have studied in class 11 also what is hydrocarbons. So hydrocarbon means generally uh, it forms the carbon and hydrogen bond will be there. So carbon and hydrogen bond it will be there, then it forms, that means the carbon, अगर तुम simplest member लेना चाहते हो, so that will be like this way, that is CH4. Okay, that is the simplest member of hydrocarbon family, that is alkane family, you can say it's known as alkane family. So alkane family में ये मैंने जो simplest लिया वो है क्या, इसका एक ही कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जनरली इट इज मीथेन. तो ऐसे करके मैं इथेन भी ले सकता हूँ, प्रोपेन भी ले सकता हूँ, ब्यूटेन भी ले सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चूज किया. तो प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जनरली आई विल टेक सम दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड वेयर सिंगल बॉन्ड ओनली एग्जिस्ट. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो, दैट विल बी ऑल्सो, इफ कार्बन कार्बन फॉर्म डबल बॉन्ड ऑल्सो along with hydrogen bond will be there also, no, with the carbon. So that is also what, that is also hydrocarbon, but simply we are taking the your only the alkane series here. So from the alkane series how we can prepare haloalkanes. Okay, so basically, so how we can prepare haloalkanes, so that will be your, so that will be if I am simply taking the member, the simplest alkane series, that will be the methane. So methane, from methane how you can prepare the haloalkanes. Okay, so how you can prepare haloalkanes, so simply replacement of one of the hydrogen, replacement of one hydrogen atom. So replacement of one hydrogen atom by क्लोरीन या बाय हेलोजन एटम. सपोज अगर मैं यहाँ पे एक्स डालू तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सो रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय वन हेलोजन एटम. तो यहाँ पे क्या देगा तुमको, सिंपली यहाँ पे तुमको देगा एक यहाँ पे एक देगा तुमको एक हेलो एल्केन सीरीज. तो यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्स लिख सकता हूँ. ठीक है, सो हाउ टू प्रिपेयर दिस हेलो एल्केन फ्रॉम hydrocarbon, that is I am simply taking the here alkane series compound. So if I simply write this compound as haloalkane from this, it's not a very easy thing. That means ऐसे फटाक से एक रिप्लेसमेंट, एक मैंने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, वहां पे मैंने एक हाइड्रोजन एटम को वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो इतना भी इजी नहीं है ये रिएक्शंस. ये रिएक्शन जनरली होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, और कभी कभार एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड में भी होता है. ठीक है, सो ये जो रिएक्शंस होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू हेलोअल्केन्स, सो दिस द रिएक्टेंट, फ्रॉम द रिएक्टेंट, सपोज इसको मैंने अगर रिएक्टेंट चूज किया, सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर तुमको निकालना है, दैट इज हेलोअल्केन्स, दैट टाइम the basic things you have to require, that means in the presence of sunlight, or you can say diffuse sunlight, or in presence of light, or at the temperature of 300 to 400 degrees centigrade, by reaction with some your what to say, halogen, so generally it will give you the haloalkanes. So let us see how this can be cited as a general reactions. Okay, तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को समझाने के लिए मैं ये चीज दिया कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम, इट विल सिंपली गिव यू द हेलोअल्केन्स. बट हाउ टू प्रिपेयर द हेलोअल्केन्स, दैट इज द मेन क्वेश्चन फॉर अस. सो जनरली मैं एक रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पे. तो सिंपल जो एल्केन सीरीज होता है वो होता है क्या है, CH4.
सो CH4 दैट इज रिटन एज मीथेन, ठीक है। प्लस अगर क्लोरीनेशन करते हो मतलब CH4 plus Cl2, that is we know that chlorine. So chlorine generally exists as diatomic state because it is a non-metallic, because it is a non-metal. So non-metal generally exists in diatomic state. That means it is a gas. So generally in the presence of, if you like, H nu means Planck's constant, nu means what? It is frequency. So generally हम लोग का सनलाइट में क्या रहता है, एक प्लैंक्स कांस्टेंट अलोंग विथ, इसको हम लोग कभी कभार बोलते हैं सनलाइट भी बोलते हैं, एच न्यू। और कभी कभार इसमें तुम लिख सकते हो एट 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट विल व्हाट विल गिव इन द प्रोडक्ट, इट विल सिंपली गिव यू द प्रोडक्ट एज CH3Cl। ओके, द प्रोडक्ट विल बी, इफ आई एम राइट हियर देन इट विल बी मच मोर क्लियर, CH3Cl, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट देगा, ये प्रोडक्ट क्या देगा तुमको, जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें देगा तुमको मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, which is a gas, which is a byproduct, you can say. So generally what we are getting here, so simple, the reaction is very simple. So methane when treated with chlorine in presence of sunlight or at a temperature of 300 to 400 degree centigrade, it will give you what? It will give you the methyl chloride. That is known as what? Chlorination of alkane. This reaction's another name is that chlorination of alkane. Okay, so यहाँ पे ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। दैट मीन्स इट विल फॉर्म ए, दैट मीन्स कब तक रिएक्शन होगा, जब तक हाइड्रोजन कंज्यूम ना हो जाए। दैट मीन्स वी विल गेट another three reactions here. That means we will get another 3 products here. जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक रिएक्शन चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मिथाइल क्लोराइड मिला। सो देन द मिथाइल क्लोराइड again it will react with chlorine and it forms what? CH2Cl2 plus HCl, clear? CH2Cl2 plus HCl, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइलिन क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। मिथाइलिन क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन वी हैव 2 हाइड्रोजन्स हियर, तो फिर से ये रिएक्शंस क्या होगा, फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे CH2Cl2 प्लस Cl2 अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट तो ऑलरेडी, मतलब ये रिएक्शंस जब लाइट गिर जाएगा, सनलाइट गिरेगा, तब ये रिएक्शंस कंटिन्यू होता रहेगा, मतलब तुम स्टॉप नहीं कर सकते हो। दिस रिएक्शन इज नॉट स्टॉपेबल अनलेस एंड अनटिल क्या होगा, जब तक हाइड्रोजन, जितना भी हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, जितना कंज्यूम ना हो जाए। मतलब यहाँ पे और कितना हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पे इस सीरीज में क्या आएगा, CH3, देन इट विल CHCl3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वी ऑल नो, नो, वी ऑल नो दिस कंपाउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्यों क्लोरोफॉर्म कहाँ पे काम आता है, तो क्लोरोफॉर्म कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, किसी को क्या करना है, किसी को बेहोश करना है, तो इसको जस्ट थोड़ा बहुत लेके, ज्यादा डोज में नहीं, ज्यादा डोज में होने से क्या हो सकता है उसका, वो मर भी सकता है, ठीक है। तो ज्यादा डोज में तो नहीं, थोड़ा बहुत डोज देके हम लोग क्या करते हैं, उसको बेहोश करते हैं। इसके बाद जो भी चोरी वोरी होता है वो जनरली क्लोरोफॉर्म से सुखा के जनरली होता है। आजकल बहुत सारा केमिकल्स आ गया, बट क्लोरोफॉर्म जनरली यूज फॉर व्हाट, किसी को बेहोश करना है तो जनरली CHCl3 इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, या बोल सकते हो ट्राइक्लोरोमीथेन। आईपीसी नेम देखोगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। सो इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और यू कैन सिंपली नेम एज अगर कॉमन नेम जानना चाहते हो तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है। देन अगेन इट हैव 1 हाइड्रोजन, सो मैं इसको स्टेप को रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन दिस क्लोरोफॉर्म अगेन ट्रीटेड विद क्लोरीन, जो क्लोरीन अवेलेबल है रिएक्शंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H nu इट विल फॉर्म CCl4 प्लस HCl। इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होने के बाद, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड होने के बाद ये रिएक्शंस और नहीं होता है, ठीक है। जब तक हाइड्रोजन कंज्यूम ना हो जाए तब तक रिएक्शन चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट दैट विल गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि 4 क्लोरीन है
तो उसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। तो इट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन यू क्लोरिनेट द एल्केन और व्हेन यू डू द क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन, that is the, if you are taking the methane, then you will get CCl4 as the major product. Clear? So how this reaction proceeds, there is some mechanisms, but mechanism is not required for you because generally higher classes में हम लोग देते हैं उन लोगों को जो लोग मेजर्स लेते हैं, केमिस्ट्री मेजर्स लेते हैं, उन लोगों को जनरली ये लगता है कि हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। बट तुम लोगों को क्लास 12 में ये सब मैकेनिज्म्स पूछने नहीं जा रहा है। जो मैकेनिज्म का जरूरत पड़ेगा मैं वो चीज को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस कभी नहीं आता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स, नहीं, आज तक तो नहीं आया। फिर भी अगर हो सकता है, अगर क्वेश्चंस आ रहा है, मैं देखूंगा क्वेश्चंस, अगर आ रहा है तो आई विल डिस्कस दिस। ओके, तो यहाँ पे मिला तो हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स मिला। एक तो मिला हम लोग को, क्या मिला, पहला प्रोडक्ट क्या मिला था हम लोग को, मिला था पहला प्रोडक्ट क्या मिला था हम लोग को, मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3Cl। इसके बाद मिला मिथाइलिन क्लोराइड, इसके बाद मिला क्लोरोफॉर्म, देन द मेजर प्रोडक्ट वी हैव गेटिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी आर गेटिंग 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बट अगर हम लोग यहाँ पे एल्केन सीरीज बड़ा कर देते हैं, मतलब अगर हम लोग इथेन लेते हैं, अगर हम लोग प्रोपेन लेते हैं, अगर हम लोग ब्यूटेन लेते हैं, तो क्या होगा? सो देयर जनरली will get only the monochlorinated product, that is only will get only replacement of only one hydrogen atom, that is will get only one type of product, that is monochlorinated product। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक दो एग्जांपल्स। तो गाइस आई थिंक यू हैव क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। तो फिर भी अगर कहीं पे डाउट हो रहा है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल अगेन मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, कोई बात नहीं, जितना बोलोगे उतना मैं समझाऊंगा तुम लोगों के लिए, मैं कष्ट करता रहूंगा, ठीक है। डरने वाला कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि डर तो सभी मतलब क्या बोलूं, डर तो सभी है। मतलब जब हम लोग क्लास 12 में थे तब हम लोग को भी डर लगता था कि क्या होगा। बट मैं सच्ची बात बोलूं, इफ यू गोइंग ऑन प्रैक्टिसिंग डेली द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन ओनली, देन यू कैन स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स इन द ऑर्गेनिक पार्ट। ये मैं 100% श्योर देख सकता हूँ तुम लोगों को। बट इट शुड बी कंटिन्यू। थोड़ा बहुत 1 या 2 पेज डेली पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूं उसको डेली एक बार रिवाइज करो, ठीक है। सो मैंने अभी क्या बोला कि मैं थोड़ा और एल्केन सीरीज को थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है। मैं क्या लेने का सोच रहा हूं, मैं यहाँ पे इथेन लूंगा। क्या लूंगा यहाँ पे, CH3 ये क्या होता है, ये होता है इथेन। 2 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो ये क्या होगा, क्या सीरीज है, इथेन, दैट इज एल्केन सीरीज। इसका नाम है इथेन, कंपाउंड का नाम है इथेन। इसको अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर क्लोरीनेशन करेंगे और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, सॉरी, अगर इसको हम लोग क्लोरीनेशन करेंगे मतलब Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, और हम लोग लिख सकते हैं क्या, H न्यू और हीट, तो क्या होगा यहाँ पे, तुम सनलाइट भी गिरा सकते हो, तुम हीट भी कर सकते हो एट अराउंड 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी तुम कंडीशंस बनाओ, जनरली इट विल गिव यू द सेम प्रोडक्ट। बट you have to, if you are adding chlorine, then it will give you the chlorinated product. If you are adding iodine, then generally iodine bromine का बाद में कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहले मैं क्लोरीन लेके यहाँ पे तुम लोग को समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 लेने से क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ आइडिया है, यहाँ पे Cl2 लेने से क्या होगा, क्या देगा हम लोग को। तो जनरली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इथेन ले रहे और यहाँ पे कंडीशंस बना रहे, अगर सनलाइट गिरा रहे और अगर हम लोग हीट दे रहे तो हम लोग को प्रोडक्ट्स क्या देगा, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन ही देगा हम लोग को, मतलब विल गेट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे सिंपली मुझे क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, यहां से आएगा, देन CH2Cl आएगा प्लस HCl आता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लोग लिखेंगे, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, इसका नाम है इथाइल
क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, या तुम लोग बोल सकते हो इसका नाम क्लोरो इथेन भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लोरो इथेन, और यू कैन सिंपली कॉल इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, तो जनरली हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सीरीज को बड़ा करते हैं तो हम लोग को जनरली क्या मिलता है, मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। बट अगर सिंपलेस्ट मेंबर लेते हो, दैट इज एल्केन सीरीज से अगर तुम मीथेन लेते हो, देन यू विल गेट सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, जब तक हाइड्रोजन कंज्यूम ना हो जाए। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 कार्बन है। जब तुम हायर मेंबर कार्बन ले रहे हो एक से ज्यादा, तब तुमको सिर्फ एक ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर? तो अभी क्या है, सॉरी, तो what we are getting here, so we'll get mono substituted product. So hot today, बहुत गर्मी दे रहा है ना कुछ दिन से, आज ग्रहण भी है शायद, या ठीक है गाइस। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सीरीज को बढ़ाते हैं, 1 से ज्यादा कर देते हैं, देन विल गेट मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग को कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करेंगे कि हम लोग को क्या कितना मिल रहा है यहाँ पे, ओनली वी आर गेटिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर मैं इस सीरीज को बढ़ाता हूं तो क्या होगा, सीरीज को बढ़ाना मतलब मैं और ज्यादा थोड़ा बड़ा लेता हूं, तो बड़ा कैसे लू, सपोज मैं प्रोपेन लिया, ले सकता हूं इसको, आराम से ले सकता हूं, कोई डाउट तो नहीं है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं ना, ठीक है, तो CH3 CH2 CH3 मतलब इसका नाम है प्रोपेन। ठीक है गाइस, तुम लोग को ये सब में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कंपाउंड नेमिंग में तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तुम लोग एक काम कर लेना, मैं IUPAC नोमेनक्लेचर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक ही मैंने वीडियो डाला है अभी तक, मैं शायद विद इन दिस वीक, मतलब जो कमिंग, अभी जो आज तो संडे है, तो ये जो वीक अभी आएगा, इस वीक में मैं रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर मैं खत्म कर दूंगा। तो तुम लोग को कहीं पे डाउट हो रहा है तो जाके एक बार क्रॉस रूल्स एक बार देख लेना। मैं PDF फाइल भी एक बार डाल दूंगा वहां पे। ठीक है, बहुत इजी तरीका का PDF फाइल है, डाल दूंगा। मैं लिख रहा हूँ अभी वो चीज, क्योंकि मेरे पास रेडीमेड नहीं है, तो मैं PDF में लिखूंगा, इसके बाद PDF में कन्वर्ट करके तुम लोग को डाल दूंगा। ठीक है, या वर्ड में डाल दूंगा, तुम लोग घर में स्टडी कर लेना। ठीक है, मैं विद इन दिस वीक में डाल दूंगा ये चीज। ठीक है, सो प्रोपेन 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन बोला जाता है इसको, प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, और कभी कभार तुम क्या देख सकते हो, मैंने कुछ देर आगे बोला, यू कैन अप्लाई हीट ऑल्सो। सो H न्यू और हीट, if you are applying on this propane, that means you are chlorination, that means you are doing chlorination on propane, then what will be the product? So product क्या देगा हम लोग को, so product देगा हम लोग को, क्या देगा, we will get here 2 types of products. Why we are getting 2 types of products? But वो जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब क्यों यहाँ पे 2 हम लोग को प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, सो 2 प्रोडक्ट मिलने का कारण एक ही है कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है दोनों सिमिलर है, मतलब ये कार्बन को हम लोग स्टार मार्क दे रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसको मैं स्टार मार्क दे रहा हूं बिकॉज ये 2 कार्बन क्या है, सिमिलर है, और यहाँ पे और एक जो कार्बन होगा वो थोड़ा डिसिमिलर है इससे। ठीक है, ब्लू मार्क और रेड मार्क का जो कार्बन है, मैंने रेड मार्क जो दिया यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग है, बट दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। ये भी टर्मिनल CH3 है, ये भी टर्मिनल CH3 है, बट ये बीच में है, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंट है। ठीक है, क्यों डिफरेंट है, बिकॉज अगर मैं तुम लोग को मैं पढ़ाया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द व्हाट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी योर हेलो एल्केन्स, तो वहां पे भी मैंने बोला था कि ये जो है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच बाय
this carbon, only one carbon, so that's why it is known as primary. ठीक है, प्राइमरी मतलब इसको मैं बोलूंगा अभी, क्या बोलूंगा, 1 डिग्री. अगर इसको देखोगे, दिस इज अटैच्ड बाय, डायरेक्टली अटैच्ड बाय 2CH3 ग्रुप, सो इट इज व्हाट, इट इज 2 डिग्री. अगर इसको देखोगे, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड बाय कार्बन, only one carbon, so it is also 1 degree. So this 1 degree and 1 degree similar. तो यहाँ पे भी एक Cl आ सकता है, यहाँ पे भी एक Cl आ सकता है, दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा, नेम क्या होगा, सेम ही होगा. बट अगर ये पे आएगा तो नाम थोड़ा अलग हो जाता है, बिकॉज इट इज somehow give you the that functional group will give you in the second number, that is Cl. तो यहाँ पे मैं दो प्रोडक्ट लिखने वाला हूं, तो एक तो होगा ऐसा CH3 CH2 देन CH2Cl हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, और एक होगा प्लस CH3, ठीक है, देन CH, बीच में एक Cl आता है, आएगा, प्लस CH3 आएगा. ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ये चीज को, ठीक है, ताकि तुम लोग को और थोड़ा इजी आ जाएगा, तब तुम लोग को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. H न्यू और 300 डिग्री टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, हीट लिखना है. ठीक है, मैं सिखाऊंगा, ये सब ट्रिक सिखाऊंगा बाद में जब तुम लोग को रोड मैप कराऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल गेट हियर, हियर 2 dissimilar carbon atom is there, one is 1 degree and the another one is second degree. So here we will get 2 types of monochlorinated products. So यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, CH3 इसको लिया, then CH2, then CH2Cl प्लस और एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 then CH, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, प्लस CH3, और दोनों में बाय प्रोडक्ट क्या आएगा, HCl, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या आएगा, HCl. क्लियर. तो बाय प्रोडक्ट लिखने का जरूरत नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस किया जाता है तब वन इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड अनदर वन इज अ बाय प्रोडक्ट. जैसे बहुत सारा कंपाउंड तुम लोग प्रिपेयर करने वाले हो, नॉट इन क्लास 12, बट तुम लोग को जब तुम लोग बीएससी में, अगर कोई कोई जो बीएससी में जाता है तो उसको बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करना पड़ता है. तो प्रिपेयर करने के टाइम पे क्या होता है कि फिल्टर करना पड़ता है. ठीक है, एक फिल्टर करना होता है. तो फिल्टर करने के टाइम पे क्या होता है, ऊपर में जो सॉलिड फॉर्म होता है ऊपर में आ जाता है, और नीचे में जो आता है वो सपोज वो सॉल्वेंट है, सपोज लिक्विड पार्ट है. सो लिक्विड पार्ट का जरूरत नहीं है, मतलब इट इज अ बाय प्रोडक्ट. जो मेजर पार्ट है वो मेरा क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट है, दैट इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. उसका ही मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, उसका ही सपोज तुम लोग को वेट निकालना है, उसका ही परसेंटेज कितना है, इतना परसेंटेज है सपोज. तो दिस इज द प्रोडक्ट. सो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, बट वन इज द बाय प्रोडक्ट एंड अनदर वन इज द मेजर प्रोडक्ट. सो यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों में ही क्या है, अगर ये प्रोडक्ट हुआ तो इसको, अगर इसको भी, ये भी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा 1 क्लोरो और मिथाइल इथाइल, मतलब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन मतलब मिथाइल मीथ इथ प्रो, सो 1 क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे क्या नाम होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, सॉरी इट्स नॉट प्लस, इट इज 1 CH3. ठीक है, इट्स नॉट अ प्लस, इट इज 1 CH3. सो 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, यहाँ पे भी लिख सकते हो 1 2 3. दैट मीन्स द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर. तो यहाँ पे इस साइड से काउंट करना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट. यहाँ पे अगर इस साइड से काउंट करोगे, अगर इस साइड से काउंट करोगे तो यू विल गेट ऑन द सिमिलर नंबर ऑफ सिमिलर पोजिशन. दैट इज whether you count from the left side to the right side or you count from the right side to the left side, you will get the position of carbon, that is position of chlorine, that is a functional group in second number position. So basically it is what, the 2 chloro then propane. Clear guys? So here you will get 2 types of product depending on the your carbons, that वो primary है या secondary है या tertiary है, उसके ऊपर क्या होगा, हर एक जगह में क्या होगा, रिप्लेस होना शुरू होगा. तो you will get secondary product and you will get the primary product, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो क्लोरीन है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच बाय ओनली 1 कार्बन, सो इट इज अ प्राइमरी क्लोरीनेशन बोल सकते हो, यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट बोल सकते हो. यहाँ पे क्या होगा,
दिस कार्बन इज अटैच, जो कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, दिस कार्बन इज अटैच्ड बाय अगेन टू अदर कार्बन, दैट इज इट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट तुमको मिल रहा है। यहाँ पे टर्शियरी तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है ही नहीं, तो कहां से होगा ना। सो यहाँ पे ओनली यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू विल गेट व्हेन यू डू द क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। सो हियर यू हैव टू राइट द पर्टिकुलर नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, we'll try to solve this question on the basis of chlorination of alkane. ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत गर्म है आज, सॉरी। क्वेश्चन है, इस कंपाउंड को CH3 होल्ड ट्वाइस, देन CH, देन CH2, CH3। ठीक है, इस कंपाउंड को क्लोरीनेशन करना है। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूं, अभी लिखने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं तुम लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सुन लेना अच्छे से। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमरिक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमरिक, आइसोमरिक मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट हैविंग द सेम केमिकल, मतलब क्या बोल सकते हैं, आइसोमर्स मतलब होता है ना कि दोनों, मैं अगर इस हाथ को, मेरा हाथ ऐसा है ना, तो अगर मैं इस हाथ को ऐसे ऐसे कर दूं, सीधा कर दूं, देख लो एक बार, अगर इस हाथ को मैं सीधा कर दूं, इस हाथ को मैं सीधा कर दूं, तो मैं तो चेंज नहीं हो रहा हूं ना, चेंज हो रहा हूं क्या, नहीं हो रहा हूं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आदमी एक ही है बट उसका पोजीशंस अलग अलग है, मतलब उसका हाथ पहले इधर था, अभी सीधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मॉलिक्यूल सेम है बट डिफरेंट ओरिएंटेशंस, दैट आर कॉल्ड द आइसोमर्स। ठीक है, तुम लोग बाद में मैं डिस्कस करूंगा ये सब चीज, 11 में पढ़ के आ चुके हो व्हाट इज आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमरिज्म, मैं कुछ याद कर रहा हूँ, पोजीशन आइसोमरिज्म, देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। so these are the isomers. What is isomers? You have already studied. ठीक है, जो क्लास 11 में एक चैप्टर देके रखा है, थोड़ा बहुत तो देके रखा है, टच दिया है वहां पे। तो यहाँ पे तुम लोग को जस्ट याद रखना है कि यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड का ओरिएंटेशन होगा, मोनोक्लोनेटेड प्रोडक्ट होगा, बट देखने में अलग अलग होगा, बट कंपाउंड तो यही रहेगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमरिक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट that are expected from the monochlorination of this compound। इसको मोनोक्लोरिनेशन करने से मतलब अगर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यू विल गेट, मतलब व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू विल गेट। सो बेसिकली मैंने कुछ देर आगे ही बोला कि जितना बड़ा कंपाउंड हो जाएगा वहां पे क्या होगा, यू विल गेट ओनली मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, बट यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट सीरीज ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस कंपाउंड को मैं क्या कर सकता हूं, ये किस फॉर्मूला में लिखा है, ये जेनेरिक कॉन्डेंस में लिखा है। तो मैं अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखूंगा इस कंपाउंड को तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं होल्ड वाइज है, तो CH3 कितना बार है, 2 बार है, मतलब 2 टाइम्स इस कार्बन के साथ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इस कंपाउंड को ऐसे करके, इसको ऐसे करके लिखा, इसके बाद बॉन्ड H लिख सकता हूं, देन CH2, हाँ इसको ऐसे ही लिख दो, बॉन्ड CH। इस कंपाउंड को मैंने ऐसे करके लिख सकता हूं कि नहीं, या वी कैन राइट इट, दिस कंपाउंड कैन बी राइट लाइक दिस वे ऑल्सो। इसको क्लोरीनेशन करने से क्या होगा, मैं एक हिंट्स दे दूंगा तुम लोग को, तुम लोग होने से अगर इसको एज ए होमवर्क तुम लोग ले सकते हो, अगर तुम लोग कर चुके हो देन कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में तुम लोग इसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट मिलेगा मैं एक आइडिया देता हूं। ठीक है, ये CH3 और ये CH3 दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों ही टर्मिनल है, तो ये तुम लोग को ये सब बनाना होगा,
चेक करना होगा कि जितना पोजीशन, जितना डिफाइंड एनवायरमेंट होगा, हियर द क्लोरीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड। दैट मीन्स ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, सिमिलर है। इसके बाद बाकी कार्बन सिमिलर है। ये कार्बन का हालत देखो, ये कार्बन, इस कार्बन, ये कार्बन जो है CH2 जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। मतलब ये क्या है, ये थोड़ा अलग है। मतलब ये क्या है, ये सेकेंडरी कार्बन है। ये क्या है, 1 डिग्री है। ये क्या है, ये भी 1 डिग्री है। ठीक है। देन ये कार्बन को देखो, 1 2 3, मतलब ये कार्बन क्या है, ये कार्बन 3 डिग्री है। क्लियर। देन और है 1 1 2, इसको देखो, ये भी अलग है शायद, देख लो तुम लोग, अलग है, अलग है। इसका इसका क्या है, ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये क्या है, ये तो 1 डिग्री है। तो ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन में कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पे अगर CH2Cl होगा और यहाँ पे अगर CH2Cl होगा, दोनों में फर्क पड़ेगा। देखना, नाम देखना उन लोग को, उन लोग का कंपाउंड का नेमिंग करना, तब तुम लोग को मालूम चलेगा। तो ये भी डिफरेंट है। ये भी क्या है, दिस कार्बन इज अटैच्ड डायरेक्टली बाय दिस कार्बन, सो दिस कार्बन इज व्हाट, इट इज आल्सो 1 डिग्री। बट ये 1 डिग्री थोड़ा अलग है ये दोनों से। इसका प्रोडक्ट लिखना, यहाँ पे जो CH2Cl आएगा, यहाँ पे भी CH2Cl आएगा, यहाँ पे CH2Cl, यहाँ पे CHCl आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एक और Cl आएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके। ठीक है। ये तुम लोग घर में ट्राई करना, नहीं हो सकता है तो मैं कल इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बहुत इजी है। यू विल गेट 4 प्रोडक्ट्स हियर, मैं आइडिया करके दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट यू हैव टू चेक वेदर how the, just you will get a monochlorinated product, that is only one. You will get monosubstituted product, but here you will get 4 products because of different 4 carbon atoms. Okay, different मतलब different environment of 4 carbon, 1 degree 2 degree 3 degree, and this carbon is somehow different मुझे लग रहा है। तो थोड़ा चेक करना। ठीक है, मैं आज और तो नहीं दूंगा वीडियोस, बट और एक वीडियो में दे सकता हूँ आज फॉर रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो इट विल बी कमिंग ऑन द, रात तक आ जाना चाहिए एक वीडियो और वो रूल्स है। ठीक है, तो तुम लोग को लिए क्लास 12 के लिए मैं आज यहाँ तक कि मैं आज खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डे विल मूव सम, विल गो सम अदर प्रिपरेशंस। ओके, सो इसको ट्राई करना। कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में तुम लोग डाल सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, फोटो मार के वहाँ पे चिपका देना। ठीक है, मैं देख लूंगा जो जो किया है। ठीक है, बाकी अगर नहीं करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल समझा दूंगा। ठीक है, सो गाइस अच्छे से रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा होगा ही रिजल्ट, कोई डरने वाला बात नहीं है। ठीक है, जस्ट बी पॉजिटिव एंड बी सिंसियर एंड टेक केयर ऑफ योर मॉम एंड डैड, एंड ऑलवेज कीप ऑन हैंड वॉशिंग। खाने के आगे बाहर जाने से सैनिटाइजर यूज करते रहना। ठीक है, सो बाय, थैंक यू।